Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all you to our next session, which is optometry IC vertical squint. Our topic of first presentation is Introduction to Vertical Squint by myself, Aisha Sarfraz. So our first introduction to vertical strabismus. Vertical strabismus is misalignment of the visual axis in the vertical direction such that one eye is higher than the other. The prevalence of vertical deviations associated with horizontal strabismus or as an isolated entities is high. The terms because in vertical strabismus there are four principal muscles involved in the deviation, so it is better to term these condition as cyclovertical strabismus. Cyclovertical strabismus. Vertical deviations have less sensory adaptations as compared to horizontal squints. The magnitude of deviation is smaller and committance is rare. Due to low vertical futurism, a small vertical deviation can cause diplopia or blurring of vision. As we all know, the for learning of for the to understand vertical strabismus, it is very important to know the detailed anatomy and physiology of the extraocular muscles. As we all know, uh, uh, we have four vertical muscles, including two obliques and two recti. First is superior rectus, which has primary action of elevation, intorsion. Secondary action is intorsion and adduction, followed by inferior rectus having primary action of depression, extorsion, and adduction. Superior oblique having in primary action as intorsion and inferior oblique extorsion. The notable point is that these are the anatomical action of these muscles, but there is always a field of muscle where muscle act as one of the primary its primary function. This is the field of action. Here you can see that the inferior oblique is best work at in adduction in elevation, and superior oblique best work in at adduction in depression. So there are multiple types of vertical strabismus, including committant. Generally, vertical strabismus are classified in committant and incommittant strabismus. Incomitants are more common than committant strabismus. Incommittant causes include neurogenic palsies like supranuclear palsies, nuclear palsy, infranuclear palsy, and cranial nerve third or fourth nerve palsy, myogenic dystrophies, and there are multiple vertical deviation which are associated with the anatomical restriction of the vertical muscles, including vertical Duane retraction syndrome, Brown syndrome, congenital fibrosis of extraocular muscle, monocular elevation deficiency syndrome, craniosynostosis, heavy eye stroke, and lot more, and also not to forget the thyroid orbitopathy and orbital wall fractures. And DVD and pattern strabismus are also one of the prevalent types of vertical strabismus. So how vertical deviation generally work, except for DVD, if the right eye is higher, then there is always the left eye is lower. Except for DVD, when you do cover test, आप जब cover test कर रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं, तो जब भी आपको एक आंख ऊपर से नीचे आते हुए मिलेगी, so हमेशा जो दूसरी आंख होगी वो नीचे से ऊपर जाएगी, except for the DVD. DVD has an exception to this. राइट हायर आई, और हम हमेशा हायर आई की पोजीशन के हिसाब से वर्टिकल डिविएशन को डिनोट करते हैं. लाइक राइट हायर आई है, देन वी विल ऑलवेज से दैट राइट हाइपर डिविएशन, और इफ राइट आई इज लोअर देन यू कैन यूज एज हाइपर डिविएशन. इसमें डायलेमा है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या लिखें, हाइपरट्रोपिया लिखें या हाइपर. अगर आपकी प्राइमरी इफेक्टिंग आई जो है उसमें जो भी डिविएशन होगी प्रेफरेबली वो लिखा जाता है कि अगर फर्स्ट करें प्राइमरी इफेक्टिंग आई में हाइपोट्रोपिया, तो देन यू कैन राइट एज अ हाइपोट्रोपिया. बट उसका एक और तरीका भी है कि आप राइट ओवर लेफ्ट करके लिखें, यानी कि अगर हायर आई हमेशा ऊपर मेंशन की जाती है और लोअर आई जो है वो नीचे मेंशन की जाती है. So, other than those vertical strabismus, there is a special category of vertical strabismus which has not any associated with neurogenic and restrictive strabismus, including superior oblique overaction and inferior oblique overaction. So, आप देख सकते हैं, अगर कोई पॉइंटर है, ये देखिए एडक्शन में, डिप्रेशन में सुपीरियर ओब्लिक का ओवर एक्शन आपको बहुत इजीली
विजिबल हो रहा है। इसी तरह एडक्शन में एलिवेशन पे आपको इंफीरियर ओब्लिक का जो ओवर एक्शन है बहुत अच्छा विजिबल हो रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि इनके लिम्बस को कंपेयर करना होता है जब भी आपने इनकी ग्रेडिंग करनी होती है। फॉर एलिवेशन और ओवर एक्शन ऑफ इंफीरियर ओब्लिक के आप हमेशा लोअर लिम्बसिस को कंपेयर करते हैं, और फॉर सुपीरियर ओब्लिक ओवर एक्शंस के लिए आप हमेशा अपर लिम्बसिस को कंपेयर करते हैं। और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि लिम्बसिस का दूसरी आई से कितना ज़्यादा है, जिसकी बेसिस में हम उसको ओवर एक्शन कंसिडर कर रहे हैं। We have already discussed one of the most important feature of vertical strabismus, which is probably not very common in horizontal strabismus or rarely found in horizontal strabismus, that is head posture. With most cases, if a compensatory head posture is present, is in order to move the eyes away from the problem area. अभी हमने स्टार्ट में बात की थी, क्योंकि जो आपका वर्टिकल स्ट्रबिस्मस होता है वो बहुत छोटी अमाउंट का होता है और उसमें डिप्लोपिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वेन एवर यू हैव एक्वायर्ड वर्टिकल misalignment, you always have double vision and double vision. So उसको avoid करने के लिए there is a compensatory mechanism exist in your visual system जो कि head posture को use करके eyes को इस position पे place करता है कि उसको double vision नज़र ना आए। Often a head posture is not a bad thing. अक्सर लोग समझते हैं गर्दन टेढ़ी करना बहुत ही गलत बात है, लेकिन एक्वायर्ड केसेस में, स्पेशली वर्टिकल एक्वायर्ड केसेस में, इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग, इट एज इट यूजली इंडिकेट दैट देयर इज अ रीजन फॉर द पेशेंट टू अडॉप्ट ए हेड पोस्चर। कॉमिटेंट वर्टिकल स्ट्रबिस्मस की बात कर लीजिए, क्योंकि जब हम स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि कॉमिटेंट वर्टिकल स्ट्रबिस्मस जो होता है वो इतना कॉमन नहीं होता, रिलेटिवली रेयर होता है, लेकिन कॉमिटेंट वर्टिकल स्ट्रबिस्मस डू एग्जिस्ट and significantly less common than non-commitant, and one of the study had found that there were non-commitant strabismus in 600 patients. Whenever there is commitant vertical strabismus, there is fair chance that patient had some kind of acquired vertical deviation which has now become commitant, or you can say that there is spread of commitancy to cause commitant vertical strabismus. इन कॉमिटेंट वर्टिकल स्ट्रबिस्मस में जो पैरालिसिस होता है रिलेटिवली मच मोर कॉमन होता है, एंड वर्टिकल डिविएशन इज ग्रेटेस्ट इन द फील्ड ऑफ एक्शन ऑफ द पेरिटिक वर्टिकल मसल. इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई इफ डिविएशन इज पेरिटिक एज इट कैन बी. जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वर्टिकल स्ट्रबिस्मस में, अगर वो एक्वायर्ड है एंड देन इट इज सस्पेक्टेड टू बी पैरालिटिक, so it is very important to identify if a deviation is peritic. It can be indicated or life threatening disorder. बहुत सारी जैसे ब्रेन स्टेम डिसऑर्डर्स हैं, किसी वर्टिकल डिविएशन में एक स्पेशल कैटेगरी भी शामिल है, दैट इज स्क्यू डिविएशन, जो कि ब्रेन मिडल क्रेनियल फोसा डिजीज की वजह से और वेस्टिबुलर सिस्टम डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की प्रेजेंटेशन तो नहीं है. Precis indicated that the cranial nerve that there is the problem, not the muscle insert. So you have to deal with the underlying disease first, then with the ocular problems. So also vertical strabismus present in restrictive forms, and there are some general rules which would help you to identify whether there is a restrictive strabismus or a paralytic strabismus. Limitation is always opposite to the effective muscle, that is if the inferior rectus is restricted or trapped, the eye will be unable to elevate. यानी कि जब आपका inferior rectus restrict हो गया और पैरालाइज नहीं है, तो उसकी जो लिमिटेशन ऑफ डिविएशन मूवमेंट होगी वो ऑपोजिट फील्ड ऑफ गेज में होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका inferior rectus है उसकी फील्ड ऑफ गेज तो डिप्रेशन है, बट देयर विल बी लिमिटेशन इन एलिवेशन. दिस डज नॉट होल्ड फॉर इनोवेशनल प्रॉब्लम, और दैट इज वाई आप फौरन से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रबिस्मस है या पैरालिटिक वर्टिकल स्ट्रबिस्मस है. एक दो और फाइंडिंग्स हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं कि आप कैसे रूल आउट करें कि ये रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रबिस्मस है या फिर पैरालिटिक स्ट्रबिस्मस है. उनमें से एक चीज़ है डक्शंस. डक्शंस आपको हमेशा बहुत अच्छा गाइड करती हैं कि पेशेंट इज हैविंग वर्टिकल पैरालिटिक स्क्विंट और रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट. अमूमन इन रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रबिस्मस डक्शंस आर इक्वल टू वर्जन्स. और वन ऑफ द
इतना कॉमनली आई डोंट नो कहीं और परफॉर्म किया जाता है या नहीं आ जाता. वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म टेस्ट फॉर restrictive strabismus is differential IOP test, when there is rise in IOP in against the opposite field of the affected muscle. जैसे कि हम inferior rectus की बात कर रहे थे, if inferior rectus is restricted, there would be rise in intraocular pressure in elevation. And the eyes can speak volumes without saying a word. अगर आप carefully examine करें vertical strabismus को, तो आप बहुत कुछ पता चला सकते हैं even patient से कुछ भी पूछे बगैर. Thank you very much. ये हमने vertical strabismus का introduction कर लिया, लेकिन vertical strabismus को डायग्नोज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विजन असेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर एवरी टाइप ऑफ डिविएशन और आई रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ को करने के लिए, बिकॉज स्मॉल वर्टिकल स्क्विंट कैन कॉज as much as dense amblyopia as compared to horizontal strabismus. So amblyopia की बहुत established definition है. We all know very well a decrease of visual acuity in one eye when caused by abnormal binocular interaction or occurring in one or both eyes as a result of pattern vision deprivation during visual immaturity, for which no cause can be detected during physical examination of the eye, which is in appropriate cases irreversible by therapeutic measures. Simply, amblyopia is a unilateral or bilateral, less commonly bilateral reduction of best corrected visual acuity in otherwise normal eye. So it's the severity of amblyopia categories. Mild amblyopia is considered 6/9 to 6/12, moderate 6/12 to 6/36, and severe more worse than 6/36. ये इसकी जो equivalent, because logMAR charts has much more retest reliability for evaluating amblyopia and managing amblyopia, so it is better to use logMAR notations. So according to logMAR, if there is 2 logMAR lines difference between two eyes, there is a potential for developing amblyopia. यानी कि एक आंख में 0.2 विजन है और एक आंख में 0.24 है या 0.5 है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को amblyopia हो सकता है. Prevalence of amblyopia worldwide is approximately 1 to 5%. Every around of all 100 patient, every 5 patient would have amblyopia. So आपको पता है सिम्टम्स ये यूजली हम जब भी हमारे पास मरीज आता है, मोस्टली हमारे जो पेशेंट्स भी हैं और जो इन्वेस्टिगेटर्स भी हैं वो इन चीज़ों पे, वो हमारी एम्ब्लियोपिया के सिम्टम्स पे हम बिलीव नहीं करते हैं. हमें तब पता चलता है जब पेशेंट कहता है कि मुझे एक आंख से नज़र नहीं आ रहा. बट देयर इज़ ऑलवेज सम ऑनगोइंग सिम्टम इन द पास्ट जो कि हम इग्नोर करते हैं, जैसे कि उनकी कंट्रोल इंटरेक्शन पूरे होते हैं, जजमेंटेड डिस्टेंसेस पूरे होते हैं, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में मुश्किल होती है, लाइनों में लिखने में तंगी होती है, उनको पोजीशंस का नहीं पता चल रहा होता. तो ये वो छोटी छोटी सिम्टम्स हैं जो कि आपको फर्दर हेल्प आउट कर सकती हैं कि पेशेंट कुड बी डेवलपिंग एम्ब्लियोपिया. और strabismus types we all are aware of, and which all know we get strabismic and anisometropic amblyopia are most common types of strabismus. So why normal visual development is important? Because it is now well established fact कि amblyopia is not a visual problem, it's a visual developmental cortical related problem. So आप हमें as a clinician ये must पता होना चाहिए कि visual development, एक normal visual development कैसी होती है. आप अपने माइलस्टोन्स बहुत अच्छा बताओ. जैसे हमें पता है कि पेशेंट जो है वो 2 to 3 months में फिक्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, एंड 3 months में स्टीरियोप्सिस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड देन इट फर्दर रिफाइंड अप टू 2 years. सो आपको पता है कि जो हमारे एक्टिव ईयर्स हैं विजुअल डेवलपमेंट के, वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल 2 years हैं. उसके बाद भी रिसर्च कहती है कि विजुअल डेवलपमेंट होती रहती है, लेकिन वो रिफाइंड विजुअल डेवलपमेंट नहीं होती, वो जस्ट रिफाइनमेंट ऑफ प्रीवियस डेवलपमेंट होती है. ऑलवेज लुक फॉर एम्ब्लियोजेनिक फैक्टर, जैसे लाइट डेप्रीवेशन है, जैसे कंजाइनटल कैटरेक्ट हैं, और इस तरह कॉर्नियल ओपेसिटीज हैं, स्टिमुलस डेप्रीवेशन है, अगर टोसिस है या स्ट्रेबिस्मस है. नॉन स्ट्रेबिस्मस इज कंसिडर्ड टू बी इन पार्ट ऑफ नॉन इंटरेक्शन कैटेगरी. स्टिमुलस डेप्रीवेशन में आप टोसिस कह सकते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़, जो कि आप ऑलवेज लुक फॉर एम्ब्लियोजेनिक फैक्टर. अगर एक बच्चा टोसिस का है, आप हमेशा एक्सपेक्ट करें
स्पेशली इफ इट्स कवरिंग हाफ मोर देन हाफ ऑफ द प्यूपल साइज के, उसको एम्ब्लियोपिया डेवलप होने के चांस हैं. तो नेवर लेट गो दैट पेशेंट. ऑलवेज एवेलुएट और मॉनिटर पेशेंट्स विजन कि उसकी विजन वो एम्ब्लियोपिया डेवलप ना हो. टाइमली मैनेजमेंट करें. एग्जैक्टली. इट्टिज्म सकता है. इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एम्ब्लियोपिया को डिटेक्ट कैसे करें. ऑल्दो स्टैंडर्ड गोल तो यही है कि हम पढ़ा के देखते हैं और विजन करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसा एज ग्रुप है बच्चों चिल्ड्रन का जो कि अभी वर्बल नहीं होता, तो उनमें आप कैसे करेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अर्ली ईयर्स में भी डिटेक्ट कर लें. और दे आर मल्टीपल क्वालिटेटिव एवेल्युएशंस आर अवेलेबल जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं अंडर 2 years ऑफ पेशेंट में विजन एम्ब्लियोपिया डिटेक्ट करने के लिए. उनमें से आप हमारे पास ये लिया ग्रेटिंग पैडल्स हैं, अगर आप देख सकते हैं ये लिया ग्रेटिंग पैडल है. इस पे आप विजन और फिक्सेशन दोनों का चेक कर सकते हैं और फिक्सेशन प्रेफरेंस भी देख सकते हैं. OKN विल हेल्प यू के पेशेंट इज हैविंग विजन और नॉट. ये आपके सीइंग और नॉन सीइंग और इंटेग्रिटी ऑफ ऑकुलर मूवमेंट को एवेलुएट करता है. जो आपके लिया ग्रेटिंग पैडल है ये आपको एस्टिमेट ऑफ विजुअल इक्विटी देते हैं कि बच्चे की विजन कितनी है. रिसेंटली कार्डिफ एक्यूटी कार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इसकी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मच मोर हायर है अदर रेदर दैन अदर टाइप्स ऑफ प्रिफरेंशियल लुकिंग टेस्ट. सो और आप फिक्स एंड फॉलो कर सकते हैं. फिक्स एंड फॉलो आइडियली अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे तो वो हाइडी पैडल्स होते हैं, उन पे स्माइली फेस होता है, वो स्मॉल मीडियम और लार्ज में होता है. अगर स्मॉलेस्ट के ऊपर फिक्स एंड फॉलो कर रहा है बच्चा मोनोकुलरली, ऑलवेज यूज, देखें इस पे लिखा हुआ है टेस्ट मोनोकुलरली, कभी भी दोनों आइज के साथ फिक्स एंड फॉलो चेक ना करें. सो टेस्ट मोनोकुलरली और डिफरेंट साइज ऑफ टॉयज यूज करें. अगर आपके पास स्टैंडर्ड टेस्टिंग शेप्स या साइज जैसे कि हाइडी फेसेस हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो आप जस्ट ये मेंशन कर सकते हैं कि पेशेंट ने किसी स्पेसिफिक नॉन नॉइजी टॉय पे या लाइट पे फिक्स एंड फॉलो किया था या नहीं किया था, और उसके अकॉर्डिंगली आप फिर उसको देख सकते हैं. Objection to occlusion is also another way to find out whether patient is having potential for amblyopia or not. Eccentric fixation, which will reveal that if patient is having eccentric fixation, there is fair chance of developing or having amblyopia. Or endurostropia test will help you find, especially monocular small squint and straight patients में अगर आपने एम्ब्लियोपिया या विजन स्टेटस रूल आउट करना हो तो इंड्यूस्ट्रोपिया टेस्ट कर सकते हैं. और फिक्सेशन प्रेफरेंस स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लियोपिया में स्ट्रैबिस्मिक फिक्सेशन प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है क्योंकि ये हमें बताती है कि आपके जो पेशेंट है कि अगर प्रेफरेंस है तो ऑब्वियसली आपकी उस आंख में विजन कम होगी. क्रॉस फिक्सेशन does not guarantee all the time that patient is not having amblyopia, क्योंकि कहते हैं कि asymmetrical cross fixation जो होती है वो still एम्ब्लियोजेनिक हो सकती है, लेकिन स्टिल क्रॉस फिक्सेशन अगर प्रेजेंट है, इक्वली क्रॉस फिक्सेशन प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल क्रॉस फिक्सेशन है, तो हमें पता है कि बच्चे को देयर इज फेयर चांस कि उसको एम्ब्लियोपिया नहीं होगा. और वर्बल चिल्ड्रन में जो विजुअल इक्विटी है उसमें सर्टन पैरामीटर्स को हमेशा कंसिडर किया जाता है, जैसे कि आप क्राउडिंग फिनोमेना चेक कर सकते हैं, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर इफेक्ट चेक कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रैबिस्मिक एंड एनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लियोपिया एंड एक्सेंट्रिक फिक्सेशन. और ऑलवेज जब आपने विजन करनी है तो एक तो आप लीनियर विजुअल इक्विटी करें, उसको एडिकेट रिफ्रैक्टिव करेक्शन बनाएं, रूल आउट कर लें कि कोई उसको ऑक्यूलर पैथोलॉजी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ विजुअल इक्विटी, बट अदरवाइज विजुअल फंक्शन आर अफेक्टेड एज वेल. हमेशा ये भी सोचें कि सिर्फ विजुअल इक्विटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, उसके अदर विजुअल फंक्शन इंक्लूडिंग कंट्रास्ट सेंसिटिविटीज, टीडियोप्सिस एंड बाइनोकुलर जजमेंट्स वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं. So there are few charts which are logMAR based charts are very helpful in detecting, evaluating, managing and monitoring amblyopia. मैनेजमेंट जो है वो हम सबको पता है कि मल्टीपल टाइप्स की मैनेजमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिफ्रैक्टिव करेक्शन करनी है, अक्लूजन थेरेपी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पिनलाइजेशन दे सकते हैं, विजन थेरेपी आजकल बहुत कॉमन है, इवन लेजर थेरेपीज बहुत कॉमन है, प्ली ऑप्टिक्स हैं. ऑल्दो पाकिस्तान में कन्वेंशनली अभी भी प्रेफर किया जाता है ऑक्लूजन थेरेपी को, लेकिन रिसर्च स्टडीज ये कहती हैं कि माइल्ड
to moderate amblyopia में vision therapy has produced good results. This is a patching regime for mild, moderate and severe amblyopia. And for prognosis of amblyopia, age of the patient, severity of amblyopia and type of amblyopia should be considered. Early detection and timely appropriate management is key to success for amblyopia management. Thank you so much. I would like to call our next presenter, Ms. Taiba Burhan. She is working as an orthoptist at Mayo Hospital, Lahore. She is going to present her presentation on sensory assessment of strabismus. Please welcome Ms. Taiba Burhan. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Ms. Aisha Sarfaraz. A very detailed, elaborated lecture and was very helpful in the clinical practices of all fourth-year students and the audience here. So coming toward the next topic is the sensory test or the sensory evaluation of in strabismus. Sensory tests, they are very important. जब भी आप स्क्विंट को एवेल्युएट कर रहे हैं, उसकी मोटर असेसमेंट से पहले, उसकी अमाउंट ऑफ स्क्विंट मेजर करने से पहले बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपने उसकी एवेल्युएट करनी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट, जो कि आपको पेशेंट के सेंसरी स्टेटस के बारे में बताएंगे. प्री सर्जिकल इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत से केसेस में जब आप पेशेंट की कोई भी थेरेपी कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव रेजिडुअल आप उसका स्टेटस अगर देख रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिवली स्क्विंट का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि उसकी फ्यूजन कैसी है, उसकी जो है वो सीरियोप्सिस किस लेवल पे है, यानी आपने अपने गोल को अचीव किया है कि नहीं. ठीक है. So there are lots of tests we perform in our orthoptic clinic, starting with Bagolini glasses, Word-for dot test, stereopsis, after image test, 4 diopter prism base out test, synoptophore and red glass test. So I think many of you are familiar with the Bagolini glasses, a very renowned test. We should know about the principle of the test and basically its optics and how it is performed. We are having all most of the tests here. I'll let you know after this presentation. थोड़ी सी आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि आप उसको देख भी सकें कि फिजिकली जो टेस्ट हैं वो किस तरह के हैं. Bagolini glasses do not have dioptric power but have narrow striations running parallel in one meridian. The test is used to determine the direction of a pseudofovea, abnormal retinal correspondence and suppression. The test is able to tell the examiner if the patient has periphery sensory fusion. This one line is very important. So it tells you about the basically detailed evaluation of the sensory status of the patient. The test is mildly dissociating and it will detect small ARC even in large angle strabismus. Bagolini glasses also simulate lifelike testing conditions which makes it the least dissociating. डिसएडवांटेज क्या है जी, बहुत छोटे बच्चों में या अगर कोई मेंटली हैंडीकैप है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, उसमें ये लिमिटेशन है कि यू कैन नॉट परफॉर्म दिस प्रोसीजर. यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट एट द नियर and at distance 6 meter as well, with glasses and without glasses as well. So this is how we perform Bagolini glasses. As you can see in the second picture, ये कोई प्लेन ग्लास नहीं है, ठीक है, इसमें स्ट्राइएशंस हैं और ये जो मार्किंग्स हैं ये स्पेसिफिक एंगल के ऊपर है, 135 एंड 45 के एंगल के ऊपर है. इस तरह की कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जब आप Bagolini ग्लासेस टेस्ट करते हैं. अ पेशेंट कैन सी अक्रॉस, एक सिंगल लाइन हो सकती है और ब्रेक भी हो सकता है इसके अंदर. अगर क्रॉस के अंदर आपको ब्रेक नजर आ रहा है तो स्कोटोमा का साइन है. अगर कोई मिसअलाइनमेंट नहीं है, क्रॉस देख रहे हैं तो NRC है. अगर स्ट्रैबिस्मस है और क्रॉस नजर आ रहा है तो ARC है. Word-for dot test. The purpose of this is used to detect peripheral sensory fusion and foveal suppression. The level of dissociation is high. Test can be used for any verbal child with an angle of strabismus, especially with reduced stereopsis.
अब जब आप वर्ड फॉर डॉट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जितने भी सेंसरी टेस्ट हैं, आपने उनको नियर पे 1/3 मीटर पे और 6 मीटर के डिस्टेंस पे, दोनों डिस्टेंसेस पे परफॉर्म करना है। ग्लासेस के साथ उसकी जो करेक्शन लगी हुई है वो लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से केसेस में सेंसरी स्टेटस चेंज हो जाता है। अच्छा, इफ यू सी दैट आफ्टर परफॉर्मिंग वर्ड फॉर डॉट टेस्ट, क्योंकि इसमें 4 डॉट्स हैं, द नेम इंडिकेट्स, इसलिए इसको वर्ड फॉर डॉट टेस्ट कहते हैं। अब इसमें एक नॉर्मल रिस्पॉन्स जो एनआरसी है, उसके रिस्पॉन्स में इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी, ये जिसमें 2 ग्रीन लाइट्स हैं और 2 रेड। एनआरसी अगर विद स्क्विंट है, यानी ईजो एक्सो के साथ अगर प्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह से लेफ्ट सप्रेशन हो सकती है, राइट सप्रेशन हो सकती है। इसमें राइट ग्लास को कोशिश की जाती है कि वो राइट आई के आगे ही जो है वो रखा जाए, रेड को, रेड ओवर द राइट, RR। स्क्विंट के साथ ARC होगी ना, अगर 4 लाइट्स देख रहे हैं। नहीं, वो मेरा ख्याल है इसमें पिक्चर में थोड़ा सा इशू है, लेकिन ये विद स्क्विंट है। अगर 2 डिस्प्लेस लाइट है ना, 3 इस तरफ है, तो वो ईजो और एक्सो की इंडिकेशन होती है, वो उस केस में होता है। अच्छा, ये वॉल बॉक्स की फॉर्म में भी होगा जो कि माउंट कर सकते हैं, और इसके अलावा ये फ्लैश लाइट की फॉर्म में भी होगा, बट ऑलवेज वी विल परफॉर्म दिस विद द रेड एंड ग्रीन ग्लासेस। Fusion at distance and near, patient reports 4 lights. Fusion is only possible when the patient is bifoveal. Fusion at near but suppression at distance, ये केसेस भी हो सकते हैं, वेरी भी कर सकता है, यानी नियर और डिस्टेंस पे जो फ्यूजनल स्टेटस है वो वेरी भी कर सकते हैं। After image test, this test is used to determine retinal correspondence and also can be used in detecting dense suppression. Most associating test for ARC also directly determines the direction of the fovea of the deviating eye. Most useful for adults that can monocularly fixate precisely. It is useful to check on adults preoperatively, especially if they have a long-standing intermittent exotropia. Difficult to perform in children. प्रोसीजर क्या है? आफ्टर इमेज स्लाइड्स होती हैं बेसिकली, जो कि हम साइनोप्टोफोर में उसको लगा के और उसके इंसर्ट करके, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल स्लाइड होती है, इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। और रूम लाइट जो है वो डार्क रूम में करते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद पेशेंट को जब आप कहते हैं वो आईज ओपन करके दूर देखेंगे, तो जो इमेज वो परसीव करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। लाइक अगर पूरा क्रॉस आपको देख रहे हैं इस पिक्चर में इन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो वो एनआरसी के केस में होगा। बाकी अकॉर्डिंग टू द स्क्विंट स्टेटस जो है वो इसका वेरी करेगा। साइनोप्टोफोर, अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ऑर्थोप्टिक्स, एम्ब्लायोस्कोप भी कहते हैं, हैप्लोस्कोप भी कहते हैं। इस पे लॉट्स ऑफ टेस्ट आप कर सकते हैं, हर तरह की असेसमेंट कर सकते हैं। इस पे टॉर्शंस मेजर कर सकते हैं, आईपीडी, फ्यूजनल रिजर्व्स, अकोमोडेशन, सेंसरी स्टेटस, फ्यूजनल स्टेटस, टीरियोप्सिस, आफ्टर इमेज, बहुत सी ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज हैं वो भी इस पे करवाई जा सकती हैं। ऑल इन वन है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। 4 diopter base out test. 4 diopter base out test, purpose of this is to detect a small central suppression, scotoma. The level of dissociation is mild. It can be used with patients who have decreased teleopsis but are orthophoric on cover testing. आपने cover uncover test किया है, उस पर कोई डेविएशन नहीं आ रही, ठीक है। आप उसका फ्यूजनल स्टेटस देखना चाह रहे हैं और सप्रेशन को रूल आउट करना चाह रहे हैं कि स्कोटोमा है या नहीं है। द टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज ऑन पेशेंट्स विद मोनोफिक्सेशन सिंड्रोम। बहुत मिनी स्क्विंट जो है, जो कि शायद कवर टेस्ट के ऊपर भी जो है वो इग्नोर हो जाता है, नहीं नजर आता। नॉर्मल रिस्पॉन्स में क्या होगा? बोथ आईज शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द एपिक्स ऑफ द प्रिज्म फॉलोड बाय कन्वर्जेंस ऑफ द आई विदाउट प्रिज्म। A sudden displacement of the image onto the parafoveia in the eye with the prism will cause the eye to shift toward the apex of the prism. Due to Hearing law of equal innervation, the fellow eye will shift the same magnitude in the same direction at the same time. जब आई की मूवमेंट, फेलो आई की मूवमेंट आप ऑब्जर्व करें, जब आपने 4 डायोप्टर बेस आउट प्रिज्म रखा है, अगर आप उसकी फेलो आई में मूवमेंट देख रहे हैं, एक शिफ्ट देख रहे हैं, देन इट इंडिकेट्स the presence of fusion. If the fellow eye is not moving, that it indicates the suppression. This is how it is performed, and you can see the movement of the fellow eye. Stereopsis, 3D vision जो है 3D vision चेक करने के, from gross to fine stereopsis, there are lots of tests.
2 पेंसिल टेस्ट, स्टीरियोग्राम्स पे करते हैं, रेंडॉट करते हैं, TMO है, लैंग 1, लैंग 2 है. This is how Lang 2 pencil test is performed. We are also having TNO and Frisbee, having 3 plates. आप उसकी different जो plates हैं उनकी different values हैं, और seconds of arc इसका unit है जिसमें इसको measure किया जाता है. Thank you very much. Now I would like to call Miss Aisha Sarfaraz again to tell about the management of vertical squint. She'll speak on motor assessment of vertical squint. Thank you, Ms. Taiba. So our next topic, obviously, after a sensory assessment of trismus, it is always would be motor assessment. Although ये बहुत लोग कहते हैं कि sensory assessment पहले करें या motor assessment पहले करें, लेकिन clinical practice और experience से मैंने अंदाजा लगाया कि अगर आप sensory assessment पहले करें तो वो ज़्यादा beneficial होता है as compared to motor assessment पहले करने के. Motor assessment जो है वो इम्पोर्टेंट एम क्या है ऑर्थोप्टिक टेस्टिंग का, क्योंकि ये पेशेंट का स्ट्रैबिस्मस रिलेटेड नेविगेट करता है कि उसका फ्यूचर क्या है. इट्स एम इज टू डिटेक्ट एंड क्लासिफाई मैनिफेस्ट एंड लेटेंट स्ट्रैबिस्मस एंड डायग्नोज सूडोस्ट्रैबिस्मस, टू evaluate the associated sensory status, to evaluate ocular motility, to investigate for associated condition, provide prognosis and management plan. This is the overall aim of orthoptic testing, which include all the tests including sensory assessment and motor assessment. So why motor assessment is very crucial? Diagnosing the type and severity of strabismus, ये आपको find out करने में help करती है. Identifying underlying cause, monitoring progress, assessing binocular vision and planning for surgical interventions. सो मोटर असेसमेंट में जनरली हम इन 3 चीज़ों को करते हैं. ये मैंने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस लिखा है. जैसे वर्जेंसेस की जाती हैं, अकोमोडेशन चेक की जाती है, फ्यूजन रिजर्व्स, क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रैबिस्मस, 3 स्टेप टेस्ट एंड ऑक्यूलर मोटिलिटी. Although convergence does not have a very active and role in vertical strabismus, but still convergence status would be helpful in evaluating the status of the eye. So it is important कि आप उसकी convergence status find out करें. And in convergence is usually multiple parameters हैं convergence measure करने के, but जो initial और basic parameter है that is near point of convergence, and you can measure it by RAF rule or simple ruler. And the break point is considered when patient reports blur on the target. जैसे कि आप ये targets देख रहे हैं जो कि यहाँ बने हुए हैं, ये कि standard RAF rule के targets हैं. इनके ऊपर जब पेशेंट अपनी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ विजुअल एक्यूटी ब्लर रिपोर्ट करता है तो हम उसको नियर पॉइंट ऑफ सस्टेन ब्लर, रिमेंबर फॉर सस्टेन ब्लर रिपोर्ट करता है तो हम उसकी एज नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन नोट करते हैं. और इसी तरह मल्टीपल पैरामीटर्स अवेलेबल हैं. इट्स नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस. मल्टीपल पैरामीटर्स अवेलेबल हैं फॉर कन्वर्जेंस और अकोमोडेशन के. जो नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन है उसके लिए आप सस्टेन ब्लर नोट करते हैं, और नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आप जहाँ पे पेशेंट डबल रिपोर्ट करता है वो रिपोर्ट करते हैं. अगर आप स्टैंडर्ड RAF रूल यूज करें तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसमें ये वाला जो टारगेट है ये आपका नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हेल्प आउट करता है. बाकी जो टारगेट्स हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट अकोमोडेशन पैरामीटर्स को इवेल्युएट करने में, इंक्लूडिंग नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन. So अगर आपके पास RAF रूल नहीं है, still you can measure near point of convergence with simple ruler, और ये clinically important है especially convergence sufficiency को rule out करने के लिए. So one of the most important aspect of convergence and accommodation relationship in strabismus assessment is AC over A ratio. और AC over A ratio जो है वो multiple condition में बहुत important role play करती है, especially convergence excess esotropia, divergence excess exotropias में. So it is very important you should know the status of AC over A ratio, and multiple methods are available for measuring it, like gradient method, heterophoria method, graphic method, fixation disparity method and haploscopic method. For all these 5 methods we preferably use in our orthoptic clinic, that is gradient method. Gradient method जो है वो सबसे commonly use किया जाता है, so we prefer to use it in our clinic as well. And fusion reserves अभी मैंने बात की थी, अगर आपको याद हो जब हमारा पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस वाला, तो उसमें हमें बात की थी कि वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस जो होता है वो बहुत स्मॉल
रेंज का होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पेशेंट आपके पास वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस की कंप्लेन के साथ आ रहा है तो आप उसके फ्यूनल रिजर्व मेजर करें, स्पेसिफिकली वर्टिकल फ्यूनल रिजर्व. ऑल्दो ऑल फ्यूनल रिजर्व आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर पेशेंट की कंप्लेन वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस के लिए है तो वो आपको वर्टिकल स्क्विंट के आपको रूल आउट करने के लिए आपको वर्टिकल जो फ्यूनल रिजर्व हैं वो मेजर करने पड़ेंगे और उनकी रेंज नोट डाउन करनी पड़ेगी. इफ पेशेंट इज हैविंग डिप्लोपिया, सो तब डेफिनेटली यू आर not going to perform fusion reserve because patient is already having break of fusion. सो प्रिज्म बार टेक्निक जो है वो बहुत कॉमनली यूज टेक्निक है, ऑल्दो फोरऑप्टर में माउंटेड प्रिज्म्स भी यूज होते हैं और हैंड हेल्ड जो रोटेटरी प्रिज्म है जिन्हें हम रिजले प्रिज्म्स हैं जो वो भी हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है एज इन मेयो हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हम वो भी यूज कर सकते हैं. लेकिन कॉमनली जो हम यूज करते हैं दैट इज प्रिज्म बार टेक्निक, जिसमें आप प्रिज्म बार जो है वो आप फ्रंटल प्लेन में प्लेस करते हैं ऑन द प्लेस ऑफ योर फ्रंटल बोन एंड पेशेंट को कहते हैं कि वो बेस्ट करेक्टेड अपनी करेक्शन पहने और जस्ट पे उसको फर्स्ट डबल हो वो एज ब्रेक पॉइंट रिकॉर्ड करे और फिर आप स्ट्रेंथ ऑफ प्रिज्म रिड्यूस करते हैं तो उसके जस्ट पे वो सिंगल रिपोर्ट करता है, उसको हम एज रिकवरी पॉइंट नोट डाउन करते हैं. सो आप उसको मेंशन करते हैं कि पेशेंट को ब्रेक पॉइंट क्या है और रिकवरी पॉइंट क्या है. उसके अलावा जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल टेस्ट है फॉर मोटर असेसमेंट ऑफ स्ट्रैबिस्मस दैट इज ऑकुलर मोटिलिटी टेस्टिंग. और ऑकुलर मोटिलिटी टेस्टिंग में इज नॉट मेयरली एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल मूवमेंट, इसमें आपकी आल टाइप ऑफ आई मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जो हम कॉमनली परफॉर्म करते हैं दीज आर एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स जो कि आपकी 9 डायग्नोस्टिक पोजीशन ऑफ गेज में की जाती हैं जो कि आपके फील्ड ऑफ एक्शन ऑफ मसल्स के अकॉर्डिंग चेक की जाती हैं. माय वेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी दैट वाज इंट्रोडक्शन में हमने फील्ड ऑफ एक्शन ऑफ मसल्स बताए थे. जैसे कि हमने बताया था कि जो इंफीरियर ओब्लिक का में बेस्ट एक्शन है वो आपको एडक्शन और एलिवेशन में पता चलता है. इसी तरह जो सुपीरियर ओब्लिक का बेस्ट एक्शन है वो आपका डिप्रेशन और एडक्शन में पता चलता है. एंड से स्पीयर रेक्टस के लिए एबडक्शन में और इन्फीरियर एबडक्शन एंड एलिवेशन एंड इन्फीरियर रेक्टस के लिए एबडक्शन एंड डिप्रेशन. यानी कि जब आप इन पोजीशंस पे दिखाएंगे तो इन मसल्स के एक्शंस आपको सबसे बेहतर पता चलेंगे और आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्जन्स और डक्शंस. वर्जन्स जो हैं वो आपकी बिनोकुलर आई मूवमेंट्स है. वी ऑल नो दी एक्सरसाइज के उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता, व्हाट आर वर्जन्स एंड व्हाट आर डक्शंस. लेकिन क्यों की जाती है वो इसलिए आपको बताया क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती हैं. अगर आप उनको केयरफुली कर रहे हैं तो आप इवन मसल सीक्वली तक डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से मसल्स अंडर एक्शन हैं और कौन से मसल्स के ओवर एक्शन हैं. ये वर्जन्स हैं जिसमें दीज आर बिनोकुलर साइमल्टेनियस मूवमेंट्स इन दी सेम डायरेक्शन. अगर आप देखेंगे तो इसमें आप आइडली कई लोगों की विजन कम होती है, लोग कहते तो हैं कि हम टारगेट से कर लें, लेकिन अगर टारगेट और लाइट में कंपेयर किया जाए तो लाइट वुड बी प्रेफरेबल फॉर मेजरिंग एक्स्ट्रा मूवमेंट्स. अगर आप पिक्चर में देख सकते हैं तो इस पोजीशन पे बेसिकली हमारा लेफ्ट का स्पीयर रेक्टस और राइट का इंफीरियर ओब्लिक का एक्शन चेक हो रहा है और इसमें आप कंपेयर करेंगे इनके लोअर लिम्बसिस को और आप मेक श्योर करेंगे कि दोनों के जो रिफ्लेक्शंस हैं वो लाइट के वो मौजूद रहें ताकि आप वर्जन्स चेक करें, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन एक आई में प्रेजेंट है तो वो वर्जन्स नहीं डक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसका जो टेस्टिंग डिस्टेंस है एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट टेस्टिंग का वर्जन्स के लिए वो 50 सेंटीमीटर है. प्रेफरेबली ऑलवेज रिमूव ग्लासेस, क्योंकि जो ग्लासेस का रिम है वो आपकी एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट को लिमिट कर सकता है. और आप और भी इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम नोट कर सकते हैं जब वर्जन्स चेक कर रहे हैं. वो ये कि पैल्पेबल साइज तो नहीं चेंज हो रहा, प्यूपल साइज में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, या ग्लोब साइज या ग्लोब रिट्रैक्शन या इस टाइप की कोई प्रेजेंटेशन तो नहीं है. अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली ये आपको हेल्प करेंगी डायग्नोज करने में और मैनेजमेंट प्लान बनाने में. डक्शंस जो हैं वो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है. ये आपको बहुत इजीली हेल्प आउट करती हैं. जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें बताया था कि डक्शन से आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को पैरालिटिक वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस है या एक रिस्ट्रिक्टिव वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस है. सो डक्शंस को आप दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. या तो आप अगर लाइट टारगेट यूज कर रहे हैं तो एक आंख से लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ कर दें, यानी कि उसको
ब्रिज ऑफ नोज के अगेंस्ट ले जाएं, या फिर आप उसको ऑक्लूडर रख के कवर करके भी चेक कर सकते हैं। और आप जब वर्टिकल मूवमेंट्स देखें, स्पेशली जब आप ऊपर दिखा रहे हैं, नीचे दिखा रहे हैं, ओब्लीक पोजीशंस में दिखा रहे हैं, तो आप हमेशा नोट करें कि ग्लोब चेंजेस तो नहीं है। और जब आप डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो लिड में लिड रिट्रैक्शन तो नहीं होती, क्योंकि जब हम डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं और लिड जो है वो रिट्रैक्ट कर रही है, दिस कुड बी साइन ऑफ थायराइड, ऑफ थैलेमोपैथी और अदर डिजीजेज एज वेल। और व्हेन ऑलवेज लुकिंग अप एंड डाउन, तो आपको हमेशा पैटर्न्स का पता चलता है। सो जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स हैं वो इन पोजीशन ऑफ गेजेस में आपको सिर्फ ये नहीं बता रही कि कौन सा मसल ओवर एक्टिंग है या कौन सा मसल अंडर एक्टिंग है, वो हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कि उनका किस टाइप की डिविएशन हो सकती है, कोई लिड रिट्रैक्शन तो नहीं है, कोई लिड टोसिस तो नहीं है, कोई ग्लोब रिट्रैक्शन तो नहीं है। इनसे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है एट द सेम टाइम। उसको हम ग्रेड करते हैं 4 के स्केल में। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज, स्पेशली चूंकि हमारा टॉपिक आज मेन जो फोकस्ड है वो वर्टिकल स्क्विंट्स पे है, कि कभी भी आप अंदाजे पे ना कहें कि उसकी आंख अंदर जा रही है तो लग रहा है इंफीरियर ओब्लिक का ओवर एक्शन होगा या सुपीरियर ओब्लिक का ओवर एक्शन हो। ऑलवेज कंपेयर लिम्बस हाइट। इंफीरियर ओब्लिक के लिए आप दोनों आंखों के लिम्बस हाइट को कंपेयर करें। अगर लिम्बस हाइट जो है उसमें डिफरेंस है, देन देयर वुड बी सम ओवर एक्शन और अंडर एक्शन। आंख अंदर जा रही है या पीछे कम अंदर जा रही है, ज्यादा अंदर जा रही है, इसकी बेसिस पे आप ओब्लिक या वर्टिकल मसल्स के ओवर और अंडर एक्शंस को आइडेंटिफाई या डायग्नोज नहीं कर सकते। सो वर्जन्स एंड मूवमेंट्स आर ग्रेडेड एज ऑन a scale as -4, -3, -2 and -1, और 0 means normal movements. उसके अलावा मैंने पहले बात की थी कि ocular motility does not mean only extraocular muscles or versions or duction. It is very important to check out saccades and smooth pursuit as well, because ये आपको आंखों से ब्रेन का हाल बता रही हैं। क्योंकि अगर आप सकेड और स्मूथ चेक कर रहे हैं और उनमें कोई डेफिशिएंसी है तो देयर इज फेयर चांस के पेशेंट को कोई ब्रेन रिलेटेड पैथोलॉजी या कोई न्यूरोजेनिक पैथोलॉजी हो सकती है। सो सकेड्स जो हैं वो 2 तरह की होती हैं। आप हॉरिजॉन्टल सकेड्स भी चेक कर सकते हैं और वर्टिकल सकेड्स भी चेक कर सकते हैं। वन हेल्ड इन द प्राइमरी पोजीशन एंड द अदर। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल सकेड्स कर रहे हैं तो आप एक प्राइमरी पोजीशन में एक अदर साइड पे फॉर राइट साइड सकेड्स के लिए करेंगे एंड द अदर साइड वुड बी फॉर लेफ्ट। और ये आप इस तरह वर्टिकल सकेड्स परफॉर्म करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके पेशेंट को कोई वर्टिकल पैरालिटिक स्ट्रैबिस्मस है तो आप सकेड्स चेक करें, स्पेशली वर्टिकल सकेड्स चेक करें और उस पर उसकी मूवमेंट की स्पीड, एक्यूरेसी और चेक करें। अगर वो आपको एक्यूरेसी में डिस्टर्बेंस लग रही है या स्पीड स्लो लग रही है तो देयर इज फेयर चांस कि उसको पैरालिटिक वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस हो। और प्री वर्बल चिल्ड्रन में आप जनरली मोटर असेसमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे आपको बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आप कैसे पता चलाएंगे कि उनमें उनका मोटर स्टेटस कैसे बिहेव कर रहा है। सो आप डॉल्स हेड टेस्ट कर सकते हैं। अब 2 साल का बच्चा है या 1.5 साल का बच्चा है, लेकिन वो एक्स्ट्राऑक्यूलर मूवमेंट तो नहीं करा रहा कि आप उसे टॉर्च पे दिखा रहे हैं या टारगेट दे रहे हैं कि 9 डायग्नोस्टिक पोजीशन ऑफ गेजेस में करें, तो हम वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स यूज करते हुए डॉल्स हेड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्विकली सर को राइट और लेफ्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि आपकी आईज ने हेड की ऑपोजिट डायरेक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। इट्स मीन दैट कि इफ यू आर रोटेटिंग योर हेड टू राइट, आईज शुड मूव टू द लेफ्ट टू देयर लैंडमार्क्स, यानी कि जो आपका लैंडमार्क है फॉर लेटरल मूवमेंट के लिए दैट इज लेटरल लिम्बस, लेटरल कैंथस, और फॉर मीडियल मूवमेंट्स के लिए आपका प्लाइका है, यानी कि ये वाली आंख प्लाइका को टच करनी चाहिए और ये वाली आंख जो है वो लेटरल कैंथस को टच करनी चाहिए। अगर ये आपको इस तरह मिल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को हॉरिजॉन्टल एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल अंडर एक्शन या एबडक्शन या एडक्शन डेफिसिट नहीं है। और अगर आप इसको कन्वर्सली परफॉर्म करें फॉर वर्टिकल, आप हेड डाउन करें या हेड अप करें, अगर आंखें इकट्ठी नीचे आ रही हैं टू द एक्सटेंट ऑफ देयर लैंडमार्क और वो इकट्ठी ऊपर जा रही हैं टू एक्सटेंट ऑफ देयर लैंडमार्क, तो इसका मतलब है कि उसको उसकी जो वर्टिकल मसल्स हैं वो normally behave कर रहे हैं, they are not overacting or they are not underacting. Or you can perform OK and drum. अगर जैसे जो cooperative children है या verbal children है उनमें तो आप सकेड्स और स्मूथ कर लेते हैं ना, कि सकेड परफॉर्म करनी और स्मूथ परसूट परफॉर्म करनी, लेकिन छोटे बच्चों में हम आइडली सकेड्स
टारगेट देके नहीं कर सकते, बिकॉज सर्केडिक टेस्टिंग इज अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट। तो उसमें हम ओके एंड ड्रम परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ओके एंड ड्रम जो है इसे प्रोड्यूस करता है ऑप्टोकाइनेटिक मूवमेंट एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्केड एंड स्मूथ परसूट। अगर ओके एंड ड्रम रोटेट करने पे अगर मैं राइट वर्ड रोटेट कर रही हूँ तो आंखें जो हैं वो लेफ्ट वर्ड जाएंगी, और अगर वो लेफ्ट वर्ड जा रही हैं, इक्वली जा रही हैं, आप फास्ट मूवमेंट देख रहे हैं वापस भी आ रही हैं, इसका मतलब है कि उसकी सर्केड और स्मूथ परसूट इंटैक्ट है। सो आप ओके एंड ड्रम को फॉर वर्टिकल कंडीशंस के लिए आप हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे। जब आप हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे तो आंखें अप और डाउन जाएंगे। जब आप ओके एंड ड्रम को वर्टिकली प्लेस करेंगे तो ये आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इलिसिट कराएगा, जैसे कि इसमें अगर आप इसको अदर वे राउंड कर लें तो ये वर्टिकल मूवमेंट्स के बारे में बताएगा। और क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रैबिस्मस है, आप सबको पता है, बहुत सारे लोग करते भी हैं। क्रिम्स्की टेस्ट है, प्रिज्म रिफ्लेक्शन टेस्ट है, ऑल्टरनेट प्रिज्म कवर टेस्ट है, प्रिज्म अंडर कवर टेस्ट है, सिनेप्टोफोरा। ऑल्दो वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस प्रेफरेबली प्रिज्म कवर टेस्ट से मेजर करना प्रेफर किया जाता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि प्रिज्म टेस्ट जैसे सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए कोऑपरेटिव नहीं होती, तो उनमें हम प्रिज्म रिफ्लेक्शन टेस्ट या फिर क्रिम्स्की टेस्ट विद प्रिज्म्स परफॉर्म कर सकते हैं। एंड वी ऑल नो द ड्रिल के क्रिम्स्की टेस्ट जो हैं दे आर रिफ्लेक्शन बेस्ड टेस्ट, और इसमें आप अकॉर्डिंग टू जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिज्म पावर को न्यूट्रलाइज करके उसकी डिविएशन को रिकॉर्ड करते हैं। ये मैं सारी चीजें कही, हमारी कोशिश है कि हम एंड पे 10 मिनट्स का एक हैंड्स ऑन सेशन कर ले, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, समटाइम इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल थिंग व्हाइल जस्ट फॉर रीडिंग इट। सो ये ऑल्टरनेट प्रिज्म कवर टेस्ट है, आप प्रिज्म बार से भी कर सकते हैं और लूज प्रिज्म से भी कर सकते हैं। और कवर टेस्ट परफॉर्म करेंगे टिल योर प्रिज्म। मैंने स्पेसिफिकली इलादा से कवर टेस्ट नहीं किया है, लेकिन ऑब्वियसली कवर टेस्ट हमेशा पहले परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद प्रिज्म कवर टेस्ट परफॉर्म किया। पहले आप टाइप ऑफ और मूवमेंट को इवेलुएट करते हैं, फिर क्वांटिफाई करते हैं उसको कि वो कितने प्रिज्म डायोप्टर्स में। और रिमेंबर स्पेशली इन वर्टिकल स्क्विंट्स डिविएशन हमेशा 9 डायग्नोस्टिक पोजीशन ऑफ गेजेस में की जाती है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आपके पेशेंट को वर्टिकल स्क्विंट है और आपने सिर्फ प्राइमरी या नियर पे मेजर कर लिया, उससे आपको वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस का कुछ पता नहीं चलेगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटर असेसमेंट का टेस्ट है जो कि स्पेसिफिकली फोकस्ड है फॉर वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस के लिए, दैट इज 3 स्टेप टेस्ट। इसमें और जो 3 स्टेप टेस्ट है इसके स्टेप्स हम आगे देखेंगे, लेकिन ये किन कंडीशन में वैलिड नहीं होता है, इन 3 कंडीशंस में आपने याद रखना है कि 3 स्टेप टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि 3 स्टेप टेस्ट सिर्फ सुपीरियर ओब्लिक के लिए होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 स्टेप टेस्ट आपके चारों वर्टिकल मसल्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है एज इट इज फॉर सुपीरियर ओब्लिक मसल। So this test not be reliable if there has been the following conditions like previous surgery, restriction or contracture. First step क्या है कि आप नोट करेंगे which eye is higher eye. Second step look to see if the hyper, यानी कि मैं right और लेफ्ट करके कवर टेस्ट या प्रिज्म कवर टेस्ट करूंगी कि मेरी आंख की जो हाइपरट्रोपिया है वो इंक्रीज या डिक्रीज किस गेज में हो रहा है। ठीक है, दिस इज प्राइमरी पोजीशन जो कि मैं 6 मीटर पे कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये राइट किया तो मेरी आंखें किधर गई हैं, लेफ्ट साइड पे। सो मैंने राइट साइड पे गई हैं तो ये मेरी राइट गेज है, तो मैं राइट गेज में कवर टेस्ट और प्रिज्म कवर टेस्ट करूंगी, और उसके बाद मैं अपनी लेफ्ट गेज में कवर टेस्ट और प्रिज्म कवर टेस्ट करूंगी। मैं कंपेयर करूंगी कि इन दोनों पोजीशंस में से किसके ऊपर आपकी हाइपर डिविएशन ज्यादा है। और जो स्टेप 3 है इट्स अ वेरी स्पेशल टेस्ट जो कि रूल आउट करता है कि कौन सा ओब्लीक मसल इन्वॉल्व है। प्रेफरेबली ये पहले किया जाता था सुपीरियर ओब्लीक के लिए, बट मैंने अभी आपको बताया कि 3 स्टेप टेस्ट इक्वली वैलिड है फॉर ऑल अदर वर्टिकल मसल्स एज वेल। सो इसमें हम हेड टिल्ट टेस्ट करेंगे, हेड टिल्ट करेंगे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, और उसी तरह कवर और ऑल्टरनेट कवर टेस्ट परफॉर्म करके इसको नोट डाउन कर लेंगे और देखेंगे कि किस गेज और किस टिल्ट में डिविएशन इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा सिनॉप्टिफोरा है, जैसे कि मैडम तैयबा ने ऑलरेडी बताया कि ये एक कंप्लीट टेस्ट है, कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप हर चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। छोटी सी 20 सेकंड्स की वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम प्रिज्म कवर टेस्ट
विद साइमल्टेनियस परसेप्शन स्लाइड्स कर रहे हैं। इसमें हम एंगल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंगल मेजर करते हैं, सब्जेक्टिव एंगल मेजर करते हैं, फिर उसके बाद फ्यूजन, स्टीरियोप्सिस और फ्यूजन रिजर्व सब कुछ इसमें मेजर कर सकते हैं। So our conclusion is that motor assessment is very important for exact diagnosis to rule out residual isotropias, conjunctive anisotropia, and to predict the stability of strabismus, ke whether patient is going to have resolved strabismus with fusion or BSV or not. So आपकी motor assessment आपको बहुत help करती है. Thank you very much. So question answer session हम बिल्कुल एंड में करेंगे. एक लास्ट छोटी सी मैनेजमेंट स्लाइड्स रह गई हैं, वो हम इंशाल्लाह देख लेते हैं कि आप वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस को मैनेज कैसे कर सकते हैं. सो मैनेज ऑफ स्ट्रैबिस्मस में हम सबको पता है कि हमारे एम क्या है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वो याद रखें कि आपको 4 चीज़ें मस्ट करनी है. कंप्लीट ऑर्थोप्टिक असेसमेंट इंक्लूडिंग बाइनोकुलर विजन असेसमेंट, कॉम्प्री हाई एग्जामिनेशन, एंड because multiple times acquired vertical squint is related to neurological conditions, तो आपने neurological examination भी कराना होता है. So management में जो main 2 चीज़ें हैं, that is non-surgical management and surgical management. Non-surgical management में obviously आप optical therapy correction कर सकते हैं, glasses prescribe कर सकते हैं, prism therapy दे सकते हैं according to type of deviation. Orthoptic exercises करा सकते हैं, although orthoptic exercise is not very effective for vertical squints, but still orthoptic exercise is an option. और patching करा सकते हैं, patching amblyopia के लिए भी use हो सकती है, और for the time being temporary मैनेजमेंट ऑफ डिप्लोपिया के लिए भी यूज़ हो सकती है. एंड मल्टीपल कंडीशंस में जिनमें वर्टिकल स्क्विंट्स होता है, स्पेशली एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लाइक स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, तो आप ट्रैकिंग, स्केड और अदर विजुअल परसेप्शन स्किल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज करा सकते हैं. एंड if patient requires surgical management, it is our duty to make referral for surgical management of strabismus to ophthalmologist and strabismologist. And there are some surgical techniques which are very much specific for vertical muscle surgeries. इनमें से कुछ के तो हम familiar होंगे, लेकिन कुछ जो बहुत हैं वो पाकिस्तान में इतनी commonly perform नहीं की जाती. Inferior oblique resection and myectomy are much more common in weakening procedure of inferior oblique. For superior oblique, especially correcting extorsion, Hyrida-Ito procedure is very common. And for DVD, spear rectus recession, and for monocular elevation deficiency syndrome, it's SNAP procedure. And these procedures aim to correct the misalignment and improve binocular vision by targeting the muscle responsible for eye movement. Each patient's treatment plan is individualized based on the type and severity of the cyclovertical deviation. Thank you very much. So the next session is going to start, so we have to wind it. Thank you very much. Allah Hafiz.